السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ آج ہم دیکھیں گے موک ٹیسٹ، اور یہ موک ٹیسٹ ہے ہمارا یونٹ 4 سے، جو ہمارے نصاب میں شامل ہے نظم اور نظم نگاروں پر۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم صرف نصاب میں شامل نظموں کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ ہیلپ کر سکتی ہیں RPSC ایگزامس میں، TGT میں، اور UPGIC اور ادر اسٹیٹ ایگزامس میں بھی آپ کو اس سے ہیلپ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ MA اور BA میں بھی آپ کو اس سے ہیلپ مل سکتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ضرور پہنچے گا۔ ویڈیو سے ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کر سکتے ہیں، اسی نام سے ٹیلی گرام چینل بھی ہے۔ وہاں پر روزانہ کوئزز ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی تیاری کا جائزہ لے سکتے ہیں اور استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا پہلا سوال یہ ہے، حال سے پہلے ہماری شاعری دل والوں کی دنیا تھی، یہ کس کا قول ہے؟ آل احمد سرور، رشید احمد صدیقی یا کلیم احمد؟ تو یہ قول ہے ہمارا آل احمد سرور کا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ دوسرا کوشچن ہے، بقول حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور نظر آتا ہے یا ملتا ہے؟ تو آل احمد سرور نے کہا یا کلیم الدین احمد نے؟ تو یہ قول کہا تھا آل احمد سرور کا ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالی کی غزلوں میں صحت مند ادبی شعور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کا برنارڈ شاہ کسے کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین حالی کو، آل احمد سرور کو یا سر سید احمد خان کو؟ تو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے حالی کو۔ ان میں سے کون سی نظم باغ درا کے دوسرے حصے میں جو ہے تو شامل نہیں ہے؟ ہمیں یہ بتانا ہے کہ کون سی نظم ہے جو دوسرے حصے میں شامل نہیں ہے۔ حقیقتی حسن اس میں شامل ہے۔ بانگ درا کے دوسرے حصے میں شامل ہے حقیقتی حسن، کلی، چاند اور تارے انسان اور ایک شام۔ یہ جو ہے تو پانچوں بھی ہمارے بانگ درا کے دوسرے حصے میں شامل ہے، لیکن یہ بزم عجم جو ہے تو تیسرے حصے میں شامل ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر 3 درست ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، کس نظم کی شروعات اس مصرعے سے ہوتی ہے؟ ہمیں یہ بتانا ہے، اس مصرعے کی شروعات اس نظم سے ہوتی ہے، یہ مصرعے سے ہوتی ہے۔ جب کیا صبح روشن فلک میں نائی، بستر خواب سے میں لے کر اٹھا انگڑائی۔ یہ مصرعہ ہے کس نظم کا؟ ہمیں یہ بتانا ہے، یا کس نظم کی شروعات اس مصرعے سے ہوتی ہے۔ جب کیا صبح روشن فلک میں نائی، بستر خواب سے میں لے کر اٹھا انگڑائی۔ تو یہ ہے صبح امید۔ اس نظم کی شروعات جو ہے تو اس مصرعے سے ہوتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو سبھی امتحانات کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے آزاد نظموں والا زمرہ تلاش کرنا ہے، یا آزاد زمروں والا جو ہے تو نظموں والا زمرہ نہیں ہے، یہ پہچاننا ہے۔ آپشنز میں بتانا ہے آپ کو کہ آزاد نظمیں کون کون سی ہیں۔
किस तरह से मेरा दिल जार भी यूं आह चला, जैसे बुलबुल सोए गुल कबक सोए माह चला। किस नज़म से माखूज़ है ये मिसरा बताना है। तन्हाई से बाजियाबी से या फिर सुबह उम्मीद से। तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की है और बाजियाबी हमारी शफीक फातिमा शोरा की है और सुबह उम्मीद, तो ये नज़्म है सुबह उम्मीद का मिसरा है। किस नज़म का इख्तिताम इस मिसरे पर होता है, हमें ये बताना है। तपीशे इश्क से दिल हुए मेरा नर्म सदा, गर्मी शेर व सुकन सीना रखे गर्म सदा। तो ये मिसरा किस इख्तिताम पर नज़म का इख्तिताम होता है, इस मिसरे से ये बताना है। शब क़दर बरखा रोतियाँ निशात उम्मीद, तो शब क़दर इस मिसरे पर ये नज़म जो है तो ख़त्म होती है, इख्तिताम पज़ीर होती हैं। अल्लामा इक़बाल ने तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम नज़्म कब लिखी, तो सबसे पहले तो ये तलबा अलीगढ़ कॉलेज के नाम ये नज़म जो है तो अल्लामा इक़बाल की है। अब हमें बताना है कि ये कब और कहाँ लिखी गई है। यूरोप के क़याम के दौरान 1907 में, या लंदन के क़याम के दौरान 1910 में, या जर्मनी के क़याम के दौरान 1907 में। तो ये नज़म लिखी थी उन्होंने यूरोप के क़याम के दौरान 1907 में। किस सनफ़ सुख़न का मैदान जो है तो गज़ल से भी ज़्यादा वसी है, ये बताना है। तो ये नज़म जो है तो इसका सनफ़ सुख़न का मैदान जो है तो नज़म और गज़ल से भी ज़्यादा वसी होता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किस नज़म में क़िले कहो का इस्तिआरा देखने को मिलता के तौर पर क़िले कहो को इस्तिआरे के तौर पर बढ़ता गया है, हमें ये बताना है। हमें मिलता है नज़्म सुबह उम्मीद में हमें क़िले कहो का जो है तो कहो का ज़िक्र मिलता है और इसे इस्तिआरे के तौर पर बढ़ता गया है नज़म में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी नज़्म सुबह उम्मीद कब पढ़ी, अब ये बताना है कि उन्होंने ये नज़म सुबह उम्मीद जो है तो कब पढ़ी है, ये बताना है हमें। 30 जून 1874 में, या 30 मई 1874 में, या 20 अप्रैल 1874 में। तो इन्होंने ये नज़म पढ़ी थी 30 जून 1874 में, और यह अंजुमन पंजाब के तीसरे जलसे में ये नज़्म पढ़ी, ये मसनवी जो है तो नज़्म पढ़ी गई है तीसरे जलसे में अंजुमन की। आगे बढ़ेंगे हम। ख़यालात दरबाब नज़्म और कलाम मौज़ू किसका है, ये और किस नज़्म के साथ ये पढ़ा गया है, तो ख़यालात दरबाब नज़्म और कलाम मौज़ू, ये तो सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है और ये अंजुमन पंजाब में जो है तो ये जलसे में पढ़ा गया था। लेकिन ये किस नज़्म के साथ पढ़ा गया है, तो ये बताना है हमें। शब क़दर नज़्म जब उन्होंने पढ़ी थी उसी में ये है तो मौज़ू पढ़ा गया है। और शब क़दर नज़्म इनकी पढ़ी गई थी 19 अप्रैल 1874 में। 19 अप्रैल 1874 में इन्होंने ये नज़्म पढ़ी थी शब क़द्र, और इसी के साथ ये मज़मून भी ख़यालात दरबाब नज़्म और कलाम मौज़ू, ये भी जो है तो इन्होंने पढ़ा था। आगे बढ़ेंगे हम। हर चंद शह सवार को गर्दिश मदाम है, दिन गर्म हो के सर्द सफ़र उसका काम है। ये किस नज़म का मिसरा है, हमें बताना है कि ये किस नज़म का मिसरा है। तो ये निशात उम्मीद मिनाजात बेवा या शब क़दर, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़मों से माखूज़ है और ये नज़्म इससे माखूज़ है किस शब क़द्र से। ये मिसरा लिया गया है शब क़द्र से। ये हर चंद शह सवार को गर्दिश मदाम है, दिन गर्म हो के सर्द सफ़र उसका काम है। नज़म दिल फरोज़
क्या है, किसका है और किसने मरतब किया, ये बताना है। तो ये नज़्म दिल फरोज़ ये है तो मजमू है नज़्मों का ही, और ये है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, और इसे मरतब किया था इनके शागिर्द मुमताज़ अली ने। तो पहला ही ऑप्शन सही है। तो नज़्म का मजमू है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, और उनके शागिर्द जो है तो मुमताज़ अली ने इसे जो है तो मरतब किया था। आगे पढ़ेंगे हम। इस देश में कोई मुश्तरक ज़ुबान हो सकती है तो वो मुनाजात बेवा की ज़ुबान है। ये कौल है और बताना है हमें ये किसका है, आला अहमद सुरूर का, हाली का या मौलवी अब्दुल हक का। तो मौलवी अब्दुल हक ने जो है तो मुनाजात बेवा की ज़ुबान के ताल्लुक़ से कहा था कि इस देश में कोई मुश्तरक ज़ुबान हो सकती है तो वो मुनाजात बेवा की होगी। तो एहतिमाम व इंसराम, तरतीब व तंज़ीम, रब्त व तसलसल की इसकी ख़ुसूसियात होती हैं, ये बताना है। तो ये नज़्म की ख़ुसूसियात होती हैं रब्त, तरतीब, तंज़ीम और एहतिमाम व इंसराम। ये तसलसल पाया जाता है नज़्म में। ज़ैल में कौन सी नज़्में मसनवी के फार्म में नहीं लिखी गई है, ये बताना है। तो इसमें कुछ नज़्में दिए हुई है जो मसनवी के फार्म में है, लेकिन जो नहीं है हमें वो ज़ुमरा तलाश करना है कि कौन सी नज़्म मसनवी के फार्म में नहीं है। शब क़दर, सुबह उम्मीद, निशात उम्मीद और ये बरखा रोज़, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, और ये बरखा रोज़ जो है तो हाल की है। ये तीनों नज़्में भी मसनवी के फार्म में लिखी गई हैं। इसके अलावा बरखा रोज़ भी ये मसनवी के फार्म में है। मुनाजात बेवा ये भी मसनवी के फार्म में लिखी गई है। साक़ीनामा जो है तो ये भी अल्लामा इक़बाल की नज़्म है, ये भी मसनवी के फार्म में लिखी गई है। इसके अलावा किसान ये मसनवी के फार्म में है। जंगल की शहज़ादी ये दोनों नज़्में जोश की हैं, और ये नज़्म जो है किसान आरपीएससी एग्ज़ाम के शामिल निसाब है, एग्ज़ाम में जो है तो शामिल निसाब है। ये दोनों ज़ुमरे जो है तो मसनवी के फार्म में नज़्मों पर मुश्तमिल है, लेकिन आदमी नामा, बंजारा नामा और एक लड़का ये जो है तो मसनवी के फार्म में नहीं है। तो आंसर हमारा तीसरा होगा। इसके अलावा उर्दू को इंशा परदाजी के दर्जे पर जिसने पहुँचाया करो वो आज़ाद और सिर्फ आज़ाद है। हमें ये कौल बताना है कि वो किसका है। तो ये कौल हाली का है, आला अहमद सुरूर का है या मेहदी अफादी का। आगे पढ़ेंगे हम। मंदरजा झैल में मौर्रा नज़्मों वाला ज़ुमरा नहीं है, उसे तलाश करना है कि मौर्रा नज़्म नहीं है। ताजमहल और हवेली ये मौर्रा नज़्मों में शामिल की जाती हैं। इसी तरह पगडंडी, एक लड़का, ये भी मौर्रा नज़्मों में शुमार की जाती हैं। तन्हाई, सुबह उम्मीद, ये दोनों की दोनों जो है तो मौर्रा नज़्मों में शुमार की जाती हैं। शुआए उम्मीद और लाला सहराई, ये जो नज़्म है ये शुआए उम्मीद और ये नज़्म लाला सहराई ये जो है तो पाबंद नज़्में हैं, ना कि मौर्रा। तो इसका आंसर होगा 4। आगे बढ़ेंगे हम। शब क़दर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो है तो कब पढ़ी थी, ये बताना है। तो अभी पढ़े हमने, इससे पहले देख लिए कि 19 अप्रैल 1874 में ये नज़्म पढ़ी गई थी अंजुमन पंजाब के जलसे में। अलक़िस्सा है और अमीर के कोई फ़कीर है, औरत है या कि मर्द, जवां है या है कि पीर है, किस नज़्म से ये माख़ूज़ है, ये बताना है। ये मिसरा जो है तो किस नज़्म से माख़ूज़ है, ये बताना है। तो ये मिसरा हमारा शब क़दर से, फ़र्ज़ लतीफ़ा से या सुबह उम्मीद से। तो ये मिसरा हमें सुबह वतन से, तो ये मिसरा हमें शब क़दर में देखने को मिलता है इस नज़्म में। आगे बढ़ेंगे हम। क़िस्सा का ज़िक्र किस नज़्म में मिलता है। तो इससे पहले हमने देख लिए कि इख्तियारी के तौर पर बढ़ता गया है सुबह उम्मीद में क़िस्सा किले कोह को
इख्तियार के तौर पर बरता गया है सुबह उम्मीद में। दर्ज झैल में से कौन सी नज़्म मुसद्दस के फ़ाम में लिखी गई है? ये बताना है कि मुसद्दस के फ़ाम में कौन सी नज़्में लिखी गई हैं। तो ये दर्ज झैल में से मुसद्दस के फ़ाम में लिखी गई है रामायण का एक सीन। ये मुसद्दस के फ़ाम में है। आगे देखेंगे हम मंदरज झैल में से पाबंद नज़्म वाला ज़ुमरा पहचान नहीं है, ये पहचानना है। तो इसमें कुछ पाबंद नज़्में होगी और नहीं है, उसे तलाश करना है हमें कि कौन सी नज़्म पाबंद फ़र्ज़ लतीफ़ा जो है तो ये पाबंद नज़्म है। इसके अलावा बरक़ कलीसा ये अकबर इलाहाबादी की है, ये भी फ़र्ज़ लतीफ़ा उन्हीं की है। हुब क़ौमी भी उनकी है। लाला सहराई अलबत्ता ये अल्लामा इक़बाल की है और बाकी जो है तीनों भी ये अकबर इलाहाबादी की है और ये पाबंद नज़्में है। शुआए उम्मीद आप सभी जानते हैं ये अल्लामा इक़बाल की है। शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब जोश की है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग ये फैज़ अहमद फैज़ की है नज़्म। ये जो है तो ये भी पाबंद नज़्मों वाला ही ज़ुमरा है। इसमें गुरेज़ भी पाबंद नज़्मों में गुरेज़ का भी शुमार होता है, लेकिन बाज़ आमद और बाज़ियाबी ये दोनों नज़्में जो है तो पाबंद नज़्में नहीं है बल्कि आज़ाद नज़्मों वाला ज़ुमरा है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। मोहम्मद हुसैन अल्लामा इक़बाल की शुआए उम्मीद जो है तो किस मजमूए में शामिल है, ये बताना है कि ये नज़्म किस मजमूए में शामिल है। तो ज़र्ब कलीम, बाले जिब्रील या अरमग़ानी हिजर, तो ये ज़र्ब कलीम में शामिल है शुआए उम्मीद। इसके अलावा शुआए उम्मीद इस मजमूए में शामिल है इल्म व इश्क़, निगाह, सुबह, चमन, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेराज, ये भी नज़्में जो है तो तौहीद, मर्द मुसलमान, सुल्तान टीपू की वसीयत, औरत, निगाह शौक़ और फ़नून लतीफ़ा ये जो है तो शामिल है शुआए उम्मीद ये ज़र्ब कलीम में ये भी नज़्में जो है तो शामिल है ज़र्ब कलीम में। इस नज़्म को अल्लामा इक़बाल ने इस नज़्म नहीं होना था यहाँ पर शुआए उम्मीद इस नज़्म को अल्लामा इक़बाल ने किस अंदाज़ में पेश किया, ये बताना है। तो शुआए उम्मीद का जो है तो ड्रामाई अंदाज़ में उन्हें अल्लामा इक़बाल ने इस नज़्म को पेश किया था। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तो ये नज़्म का बंद कहाँ दर्ज है? तो ये एक बार जो है तो बीच में भी इसका ज़िक्र है और आखिर में भी आता है, तो इसका दोनों में शुमार होगा, दरमियान में भी और आखिर में भी। आगे बढ़ेंगे हम। शुआए उम्मीद नज़्म, अब ये हमें बताना है कि ये नज़्म जो है तो तमसीली नज़्म है और रजाई नज़्म है। ये दोनों नज़्म ये शुआए उम्मीद में हमें देखने को मिलता है, तारीख़ी नज़्म नहीं है। शुआए उम्मीद कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, हमें ये बताना है। ये अल्लामा इक़बाल के ज़र्ब कलीम में शुआए उम्मीद जो है तो नज़्म शामिल है और ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल नज़्म है। आगे बढ़ेंगे हम। शुआए उम्मीद के पहले हिस्से में किससे ख़िताब किया गया है? किरणों से सूरज का खिताब या किरणों पर खिताब का असर। तो ये नज़्म जो है तो यहाँ से शुरू होती है, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम। यहाँ से ये नज़्म की इब्तिदा होती है। ये 3 हिस्सों पर जो है तो मुश्तमिल 3 बंदों पर मुश्तमिल नज़्म है और इसमें जो है तो पहले जो है तो किरणों से सूरज का खिताब ये पहले बंद में है। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजीब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। यहाँ से ये पहला मिसरा है इस नज़्म का। यहाँ से इस नज़्म की इब्तिदा होती है
اور اس میں جو ہے تو کرنوں سے سورج کا جو ہے تو خطاب کیا گیا ہے۔ دوسرے میں کرنوں پر خطاب کا اثر بتایا گیا ہے۔ اسی طرح تیسرے میں جو ہے تو شعاع آفتاب کہتی ہیں کہ جب تک مشرق اور سارا عالم روشن نہ ہو جائے تب تک میں ہے تو چمکتی رہوں گی۔ یہ تیسرے میں بتایا جاتا ہے اس کا۔ شعاع علامہ اقبال اپنے کس مجموعے کا نام جو ہے سورہ اسرافیل رکھنا چاہتے تھے؟ تو یہ ضرب کلیم کا نام ہی انہوں سورہ اسرافیل رکھنا چاہتے تھے۔ یہاں سوال سے ہوں گا اس کا۔ آپ کو اپنی قدر کرنی چاہیے، آپ بہت اچھے جو ہے تو بہت اچھے یہاں پہ ہونا تھا، اچھے شاعر ہو سکتے ہیں۔ یہ کس جوش کے تعلق سے کس نے کہا یہ بتانا ہے۔ تو یہ کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہا تھا جوش کے تعلق۔ بدلی کا چاند، برسات کی بہاریں، ساون کا مہینہ، شکست زندہ کا خواب کس کی نظمیں ہیں؟ تو یہ ہے جوش کی نظمیں اور ہمارے نصاب میں شامل ہے شکست زندہ کا خواب۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ اٹھ کر خورشید کا سامان سفر تازہ کرے، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کرے۔ یہ علامہ اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے یا کس مجموعے میں درج ہے یہ شعر؟ تو یہ شعر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بال جبریل میں۔ مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ نظم جو ہے تو کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے اور یہ نقش فریادی میں جو ہے تو ان کی نظم شامل ہے اور نصاب میں بھی یہ شامل ہے۔ جوش کی موت اردو نظم کے انقلابی دور کا خاتمہ ہے۔ بقول یہ کس نے کہا ہے کہ یہ اردو نظم کا انقلابی نظم کا جو ہے تو دور کا خاتمہ ہے؟ تو یہ کہا تھا فراق نے کہا تھا یہ اردو جوش کے تعلق سے، جوش کی موت پر انہوں نے یہ کہا تھا۔ جوش کے مرنے کی خبر سننے کے لیے میں کیوں زندہ رہ گیا، جوش کے بعد میں رہ کر کیا ہے تو کیا کروں گا، یہ بھی فراق نے ہی کہا تھا۔ جوش کی جو نظم ہے یہ نظم کتنے بندوں پر مشتمل ہے اور کتنے مصرعوں پر؟ تو یہاں پر یہ نظم جو ہے تو کہ مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ نظم کتنے بندوں پر اور کتنے مصرعوں پر مشتمل ہے؟ تو اس میں کل 3 بند ہے اور 20 مصرعوں پر یہ نظم مشتمل ہے اور اسی مصرعے پر اس کی شروعات بھی ہوتی ہے اور اختتام بھی اسی مصرعے پر ہوتا ہے۔ مجھ سے پہلے سے محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ انتظار ساغر کے کنارے، لمحے رخصت جوانی اور آتش کدہ دھواں جنگ، یہ نظمیں کس کی ہیں؟ تو یہ ساری کی ساری نظمیں مخدوم محی الدین کی ہے۔ آگے کس کو دیکھ کر مم مم کرتے ہیں؟ تو یہ آسان ہے، پانی کو دیکھ کر مم مم۔ اے میری امید، میری جان نواز، اے میری دل سوز، میری کار ساز، میری سفر اور میرے دل کی پناہ یہاں، اور درد و مصیبت میں میری تکیہ گاہ۔ یہ تو نشاد امید کا بند ہے اور اسی بند میں جو ہے شامل ہے، یہ بتانا ہے ہمیں کہ یہ بند جو ہے تو شروع میں ہے، آخر میں ہے یا درمیان میں ہے۔ تو شروع نشاد امید نظم کی شروعات ہی اسی جو مصرعوں سے ہوتی ہے، تو یہ شروع میں ہے۔ اب اپنے نان خشک کو پانی میں چور کر کھایا ہے اور مست پڑا ہے تنور پر، یہ کس نظم کا مصرع ہے؟ اس طرح سے یہ نان، تنور، یہ دیکھ کر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ روٹی اس نظم کا مصرع ہوگا، لیکن یہ اس نظم کا مصرع نہیں ہے بلکہ یہ شب قدر کا یہ مصرع ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہمیں کس
نظم میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے نشاط امید میں، یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نشاط امید میں محمد حسین آزاد کی یہ نظم میں۔ اس کے علاوہ نوح کی کشتی کا سہارا تھی تو، جہاں میں یوسف کی دل آرا تھی تو یہی نوح اور یوسف علیہ السلام کا ذکر کس نظم میں ہے، تو یہ ہے نشاط امید میں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بتائی کہ اس مصرعے میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے۔ جیسا تو نظموں میں جو ہے تو صنعتیں نہیں پوچھی جاتی، لیکن آپ کو یاد رکھنے کی صورت یاد رہے اس لیے میں نے یہ مصرع آپ کو معلوم رہے کہ یہ کس نظم سے ماخوذ ہے، اس سے معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ نوح کی کشتی اور یوسف علیہ السلام کا یہ تاریخی واقعہ کا ذکر ہے، اور ہمیں ملتا ہے تلمیہ میں۔ تلمیہ جو ہے تو تاریخی واقعات سے مناسبت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خضر کی ہے شان دکھاتا آتا، ہاتھ میں پانی کی جھاگل ہلاتا آتا، یہ کس نظم کا ٹکڑا ہے یہ بتانا ہے۔ تو یہ نظم کا ٹکڑا ہے صبح امید۔ صبح امید اس نظم میں یہ مصرع ہمیں دیکھنے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر بھی اس نظم میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ صبح امید ہی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ڈیڈیش ہے اور ایک سمت کو ڈیڈیش کھڑی، آگے ایک ڈیڈیش غفلت لیے ڈیڈیش کھڑی۔ مکمل کرنا ہے یہ دو مصرعے پر مشتمل، یہ ہے تو مصرعے ہیں، شعر ہے، بول سکتے اسے میں بتانا ہے۔ ایک طرف عقل ہے، ایک طرف جو ہے تو عقل ہے، اور ایک سمت میں جو ہے تو تدبیر ہے۔ آگے ایک ساغر ہے غفلت لیے، اور تاثیر کھڑی ہے، یہ آئے گا اس میں۔ اس کا پہلا آپشن درست ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کس میں ہے، تو یہ ابھی بتائی کہ یہ صبح امید نظم میں ہے۔ داد مل جائے گی اور جب اور کوئی دیکھے گا، آج دیکھا نہ کسی نے تو کبھی دیکھے گا، یہ ہمیں بتانا ہے کہ کس نظم کا آخری بند ہے۔ داد مل جائے گی جب اور کوئی دیکھے گا، آج دیکھا نہ کسی نے تو کبھی دیکھے گا، یہ آخری بند ہے، اور یہ آخری بند ہمیں صبح امید اس نظم کا اختتام اسی بند پر ہوتا ہے، یہ آپ لوگ یاد رکھیے۔ صبح امید محمد حسین آزاد کی نظم ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو آتی رہے گی، اور پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔